नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने मरखल ग्राम को भेज दिया। किसान आक्रोश में दोनों नेताओं को पहचानने से किया इनकार। राहुल की बेलगावी युवा रैली के बाद कांग्रेस की पहली सूची, सलीम अहमद ने कहा। सत्ता में आई तो मदरसों को बंद कर देगी बीजेपी, यत्नाल का बयान। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के चलते कांग्रेस की तरह खत्म हो जाएगी बीजेपी, अखिलेश ने एक तीर से साधे 2 निशाने। श्रीनगर में राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न पर दिया था बयान, अब उनके घर पहुंची दिल्ली पुलिस। पिछले 2 दिनों से ओलावरती बारिश और तेज हवा के कारण जिले में फसलों का नुकसान हुआ है। कल देर शाम हुई तूफानी बारिश के कारण बीदर तालुका के मरखल ग्राम के किसानों के खेतों में बारिश का पानी भरने से फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे किसान आक्रोश में धरने पर बैठे हैं। इसी बीच आज सुबह विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने भेंट देखकर किसानों से बात की, लेकिन किसानों ने एमएलसी और एमएलए को पहचानने से इनकार किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपने नुकसान के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस दौरान दोनों नेता किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे और नुकसान की भरपाई के लिए संभव मदद करने का आश्वासन दिया। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ತುಂಬಾ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೈವೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಡ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಖೋಬಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, DC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸೋಮೋ ಕಂಪನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ। ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು KDP ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು DC ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಬರೀ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ। ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ರಿ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಮೋ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ 100%। ನಾವು ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಶಾಸಕರಾದ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಭಾಳ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ಯಾವ। ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಳೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ಯದ ಅವ್ರಿಗೆ। ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ರೋಡ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಡ್ರೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು। ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನ್ಬಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೋಂಪು ಕಂಪನಿಯದವ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಟ್ಕೋತೀರಿ, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ। ಅವನು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದಾಗ 2019-20ರಿಂದ 23-22 ತನ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ। ಈಗ ಆನಿಕಾಲ್ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತರದನದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೋಗ್ಯದ, ಇದು ಭೂಮಿ ಇದಾಗ ಬೆಳೆ ಹೋಗ್ಯದ, ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೀ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಖುಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆವು। ಇದು ಪೈಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೀ BJPದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಲ್ಲೇವು, ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮ್ದೊಂದು ಮರ್ಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ದ, ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲ್ರಿ।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा है कि कर्नाटक में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची एआईसीसी के पूर्व प्रमुख और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की बेलगावी में 20 मार्च को होने वाली युवा क्रांति रैली के बाद सार्वजनिक की जाएगी। सलीम ने संवाददाताओं से कहा कि नामों की सिफारिश करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही 3 बार बैठक कर चुकी है और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी सिफारिश किए गए नामों पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि 125 उम्मीदवारों की पहली सूची 21 या 22 मार्च तक घोषित की जाएगी। यह बताते हुए कि कांग्रेस के अधिकांश मौजूदा विधायकों को कर्नाटक चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा। सलीम ने कहा कि शुरुआती सर्वेक्षणों में से अधिकांश ने भविष्यवाणी की थी कि पार्टी 140 सीटों पर आगे है। विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा सत्ता में लौटने पर कर्नाटक में सभी मदरसों को बंद कर देगी। उन्होंने बेलगावी में एक सभा को बताया कि असम सरकार ने जो किया है उसी तरह भाजपा सरकार कर्नाटक में मदरसों को बंद कर देगी। यत्नाल ने आने वाले दिनों में असम के सभी मदरसों को बंद करने के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा लिए गए फैसले की सराहना की। इसी कार्यक्रम में शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पहले ही 600 मदरसों को बंद करा चुकी है। यत्नाल जहां कर्नाटक में मदरसों को बंद करने की इच्छुक है, वहीं राज्य सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कथित तौर पर सरकार ने पिछले सितंबर में शिक्षा विभाग को राज्य में मदरसों की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिससे विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षित सीट चुनने पर भ्रम जारी है, क्योंकि यह सामने आया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा इसे दूसरा विचार देने की सलाह देने के बाद उनके कोलार से चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि राहुल को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानुगोल से यह जानकारी मिली थी कि कोलार सिद्धरामैया के लिए एक कठिन दाव होगा और उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और वहां काफी समय देना होगा। शुक्रवार शाम नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। फिर भी निर्वाचन क्षेत्र चुनने का अंतिम निर्णय सिद्धरामैया पर छोड़ दिया गया है। सीसी की बैठक के तुरंत बाद राहुल ने सिद्धरामैया से व्यक्तिगत रूप से लगभग 10 मिनट तक बात की। तभी उन्होंने सिद्धरामैया से वरुणा सीट से चुनाव लड़ने पर विचार करने के लिए कहा, जिससे उन्हें अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समय मिल सके। सूत्रों ने कहा कि सिद्धरामैया ने अपने करीबी विश्वास पात्रों के साथ इस पर चर्चा की है। सिद्धरामैया ने बाद में मीडिया से कहा, सीसी ने उस विधानसभा क्षेत्र को मंजूरी नहीं दी है जिससे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैंने इसे पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। समाजवादी पार्टी एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के चलते आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरह राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी। अखिलेश ने जातीय जनगणना पर भी जोर देते हुए कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। अखिलेश ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब भाजपा ऐसा कर रही है। कांग्रेस अब खत्म हो गई है, भाजपा का भी यही हश्र होगा। अखिलेश ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, ईडी, सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2
यूपीए 2 सरकार के दौरान कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने का वादा किया था, लेकिन बाद में पीछे हट गई। अखिलेश ने कहा, हम चाहते हैं कि भाजपा नीति केंद्र सरकार जाति जनगणना कराए। कई नेता इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरह भाजपा भी जाति जनगणना कराने की इच्छुक नहीं है। आम चुनाव के मद्देनजर संभावित विपक्षी मोर्चे का फॉर्मूला क्या होगा, इस बारे में अखिलेश ने कहा कि इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम विपक्षी मोर्चे के फॉर्मूले का खुलासा नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के घर आज सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। इस खबर के सामने आने के बाद ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। दरअसल स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था सागरप्रीत हुड्डा अपनी टीम के साथ राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस के सिलसिले में उनके घर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी को उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में दिए गए एक बयान पर नोटिस भेजा गया था। स्पेशल सीपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि पूरी जानकारी हमें मिले ताकि जल्द ही से कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया जा सके, पीड़ितों को न्याय मिल सके। उसी सिलसिले में आज खुद मैं माननीय सांसद महोदय से जानकारी लेने आया हूं। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न को लेकर बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा 16 मार्च के दिन राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए पूछा गया था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने राहुल गांधी को ये बताया था। ऐसे में पुलिस द्वारा नोटिस भेजकर राहुल गांधी से डिटेल्स मांगी गई थी। एक सवाल के जवाब में स्पेशल सीपी ने कहा था कि जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से गुजरी थी, इस दौरान मैं खुद भी वहां उपस्थित था। हमारे काफी पुलिस अधिकारी राहुल गांधी की रैली में मौजूद थे। ऐसे में हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम है तो उसके बारे में हमें जानकारी मिले। वे अगर दिल्ली के हैं तो हम फौरन कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा भरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश के चारों दिशाओं में पैदल यात्रा किया था। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में ओवैसी सीमांचल के चारों जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया को कवर करने वाले हैं। शनिवार को किशनगंज के कोचाधामन में ओवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला तो बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने अपनी पार्टी से आरजेडी में गए उन चारों विधायकों को भी पाला बदलने को लेकर आईना दिखाया जो एआईएमआईएम के टिकट पर जीतकर आरजेडी के साथ चले गए थे। आज भी ओवैसी सीमांचल में ही रहेंगे, जहां पदयात्राओं के साथ साथ ओवैसी जनसभा और रैली करने वाले हैं। ओवैसी के 2 दिनों के बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है और आज भी वो सीमांचल में ही रहेंगे। यहाँ आज वो पदयात्रा के साथ जनसभाएं भी करने वाले हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सीमांचल में ही है। इन्हीं वोटों को ओवैसी साधने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में चुनाव अभी दूर है, लेकिन हैदराबाद के भाईजान अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। सीमांचल के विकास के बहाने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की तरक्की के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें चक्का जाम ही क्यों न करना पड़े। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हेड इंजीनियर दिवस के अवसर पर आज सेंट जोसेफ स्कूल चर्च रोड वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर उन्होंने हेड इंजीनियर के प्रति जागरूकता हेतु 5000 बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच विश्व मानव का निःशुल्क वितरण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सह जेडीयू के वरिष्ठ नेता बीके सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पटना के जिलाधिकारी, रूरल एसपी पटना, एसपी ट्रैफिक पटना, सिविल एसडीओ बाढ़ और एसपी बाढ़ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में शनिवार को शक्तिशाली भूकंप से कम 12 व्यक्तियों की मौत हो गई। भूकंप के तेज झटके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोग सड़कों की ओर भागे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने देश के तटीय गुयास क्षेत्र में 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप की सूचना दी है। भूकंप का केंद्र इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े शहर गुयाक्विल से लगभग 50 मील 80 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में लोगों को गुयाक्विल की सड़कों पर इकट्ठा होते देखा जा सकता है। भूकंप के झटके उत्तरी पेरू में भी महसूस किए गए।
इस भूकंप के बाद इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो ने ट्वीट करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। इस भूकंप का केंद्र गोयास से लगभग 80 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इक्वाडोर रिस्क मैनेजमेंट सेक्रेटरिएट द्वारा बताया गया है कि क्वेक में कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति की मौत भूकंप के कारण हो गई है, क्योंकि कार पर मलबा गिरा था। संभावना जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए कि उन्हें अगले सप्ताह मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है, शनिवार को अपने समर्थकों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय से हुई अवैध लीक से संकेत मिलता है कि उन्हें अगले सप्ताह के मंगलवार को गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रंप ने अपने समर्थकों से विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा, हमारे देश को पहले की हालत में वापस लाइए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शहनाज गिल के शो में सारा अली खान की एंट्री ने जीता फैंस का दिल। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई, जडेजा को भी एलिस ने किया आउट। भारत को 91 पर लगा 7वां झटका। आखिर में समाचार बाजार की। डिज्नी में एक ही बार में 4000 लोगों की होगी छटनी, पहले भी जा चुकी हैं 7000 की नौकरी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने मरखल ग्राम को भेज दिया। किसान आक्रोश में, दोनों नेताओं को पहचानने से किया इनकार। राहुल की बेलगावी युवा रैली के बाद कांग्रेस की पहली सूची, सलीम अहमद ने कहा। सत्ता में आई तो मदरसों को बंद कर देगी बीजेपी, यत्नाल का बयान। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के चलते कांग्रेस की तरह खत्म हो जाएगी बीजेपी, अखिलेश ने एक तीर से साधे 2 निशाने। श्रीनगर में राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न पर दिया था बयान, अब उनके घर पहुंची दिल्ली पुलिस। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।